بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری بہو سخت گرمی میں بھی دروازہ بند کر کے سوتی تھی، جبکہ میرا بیٹا پردیس میں تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آدھی رات کو وہ خود دروازہ کھول دیتی، صبح اٹھتی تو اس کے چہرے پر دانتوں کے نشان ہوتے۔ یہ منظر جو آج میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک شادی شدہ عورت جو اپنے ہی سکے میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹی آج بھی وہ منظر بہت حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ میری بہت ہی شور کردہ یہ کمرے میں سو رہی تھی اور گرمی ہونے کے باوجود اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھا تھا، پر میرا بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا۔ اتنی گرمی تھی کہ مجھے باہر صحن میں بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میری بہو اس گرمی میں بھی دروازہ بند کیے کمرے میں موجود تھی اور کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ ہنستی تو کبھی کسی سے بات کرتی۔ کئی راتوں سے یہی سب ہو رہا تھا اور آج تو باقاعدہ میں نے پوری رات جاگتے ہوئے سب کچھ دیکھا۔ پوری رات کو کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی، جبکہ میرے بیٹے کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی اور وہ اس ملک میں تھا ہی نہیں۔ صبح میری بہو کمرے سے باہر آئی تو منہ ہاتھ دھونے کے لیے نلکے کی طرف بڑھی۔ جب وہ سو رہی تھی تو میری نظر اس کی گردن پر پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی گردن پر ایک نشان تھا جو کہ کسی جیسے نشان لگ رہا تھا۔ اس نشان کا کیا مطلب تھا یہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی اور وہ خود بھی جانتی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا بیٹا تو اس ملک میں تھا ہی نہیں، تو پھر یہ حرکت کس کی ہو سکتی تھی؟ میری بہو ایسی رہتی تھی جیسے شادی شدہ عورتیں رہتی ہے جب اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ان باتوں نے مجھے اس قدر پریشان کر کے رکھا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی عزت کی رکھوالی میری ہی ذمہ داری تھی، لیکن پھر ایک دن میں نے اپنی بہو کے پیٹ کی طرف غور سے دیکھا تو اس کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ میرے نام ہاجرہ ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میری 3 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے 2 دوسرے شہر میں ہاسٹل میں پڑھتی تھیں اور ان کے بہت زیادہ خرچے تھے۔ ایک بیٹی کو میں نے کسی طرح شادی تو کروا دی، لیکن اس کا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور میرے بیٹے کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا گھر بھی میں ہی چلا رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے خرچے میں سے پیسے نکال کر اپنی بیٹی کو دے دیتی۔ کیا کرتی؟ ماں تھی، نہ تو اسے بھوکا مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، لیکن یہ بات میرے بیٹے کو معلوم نہیں تھی اور نہ وہ غصے بھی ہوتا اور یہ بھی کہتا کہ کسی کو اپنی بیٹی دے دی۔ یہ رشتے میں نے ہی کروایا تھا اور اب بھی میں بہت پچھتا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کروانے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور شادی کے بعد تو بڑے بڑے بدل جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ پہلے میری بیٹیوں کی پڑھائی پوری ہو جائے، ان کے جہیز بن جائیں، پھر اس کے بعد اس کی شادی کر دوں گی، لیکن میرے بیٹے نے تو شور ڈالا۔ ایسا دیوانہ ہو گیا کہ خود حیران ہو گئی اچانک سے اس کو کیا ہوا، لیکن یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو شادی کا ایسا شوق چڑھا ہوا تھا، اوپر سے لڑکی بھی پسند کر لی۔ اگر یہ بدل جاتا تو پھر ہم ماں بیٹیاں تو سڑک پر ہی آ جاتی۔ جب بہو کو دیکھنے گئی تو میرا تو دل اور بھی برا ہو گیا۔ سوچا کہ اس طرح کے بیٹے کو ایسی لڑکی کر دوں گی کہ جو زیادہ حسین نہ ہو تاکہ یہ اس کے پلو سے نہ بنا رہے، لیکن میری ہونے والی بہو تو بلا کی حسین تھی، اتنی حسین کہ ہاتھ لگانے سے بیلی ہو جائے۔ میرا بیٹا پاگل اس کے مزید پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہاں پر تو میں نے ایسی حرکت کی کہ لڑکی والوں کو آنکھیں کھل گئی۔ اتنا جہیز مانگ لیا جو ان کی اوقات سے باہر تھا۔ سوچا کہ اب یہ جہیز نہ دے پائیں گے تو پھر رشتہ خود ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب بیٹے نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ جہیز کی رسم تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اگر میں نے مانگ لیا تو کون سا بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ میرے بیٹے نے گر سر پر اٹھا لیا۔ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو میں زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ انکار تو ان لوگوں نے کرنا تھا، جتنا جہیز میں نے مانگ لیا تھا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن میرے قدموں پہلے سے زمین نکل گئی۔ جب 2 دن بعد لڑکی والوں کے گھر سے کال آئی، جو کچھ بھی آپ نے مانگا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو ضرور دیں گے، شادی کی تاریخ طے کرنی ہے یا ہم لوگ آپ کی طرف آ جائیں۔ یا میرا بیٹا تو خوشی سے اچھل رہا تھا اور میں حیران رہ گئی تھی کہ اتنا جہیز دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ خود پر غصہ بھی آنے لگا، 2-4 چیزیں اور بتا دیتی پر لڑکی میرے گھر آ کر صاحبہ بن کر بیٹھ جاتی۔ دلہن گھر آئی تو میرا بیٹا اس کے آسے پاسے منڈلانے لگا جیسے دلہن کانچ کی بنی ہو، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ ہر چیز اس کو پرفیکٹ چاہیے تھی۔ شادی سے پہلے اس نے میرا بہت دماغ کھایا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، کوئی میری بیوی کو کچھ کہے گا نہیں، اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اس کا ایسے غلام ہو گیا تھا جیسے اس کے لیے سب کچھ یہی لڑکی تھی۔ خوبصورت، پرکشش بہت ہوتی
झूठ नहीं बोलूँगी, वो लड़की वाकई बहुत हसीन थी, लेकिन जो मेरे बेटे की हरकतें थी वो खता से बाहर ही हो गई थी। इसने तो दुकान पर जाना छोड़ दिया था, जब से शादी हुई थी कमरे का कैदी बनकर रह गया था। ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने कानों को हाथ लगा लिया। इसने कहा, तुमने अपने बेटे को खुद ही बर्बाद कर लिया। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा इसी तरह का है तो फिर इसकी लड़की को प्यारी लड़की क्यों ला कर दी, वो भी इसको पसंद की। तो मैंने कहा, क्या लगता करती, वो कभी भी इस कमरे से नहीं निकलेगा। मुझे मेरी दोस्त से मशवरा दिया कि अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दो ताकि तुम्हारा बेटा भी हद में रहे, तुम्हारी बहू को भी पता चले कि मेरा शौहर घर पर नहीं, तो वो घर की जिम्मेदारियाँ उठाए और पैसे भी खूब आएंगे। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, एक दफ़ा पहले भी जा चुका है, इसको मुश्किल नहीं होगी। ये मशवरा बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने घर आकर ये पटाखा फोड़ दिया और कहा, मैं पहले भी एक दफ़ा गए थे, इसलिए तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। वहीं पर कमाओ, दोनों बहनों की शादी करनी है। मेरे बेटे ने तो शोर डाल दिया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये आपने क्या कह दिया, मैं यहाँ पर ही रहूँगा। मैंने कहा, तुम नहीं कर सकते दुकानदारी, घर बैठकर नहीं होती ये दुकानदारियाँ, सुबह से रात तक बैठना पड़ता है। अपने कमरे में बैठकर तुम दुकान नहीं चला सकते, बाहर के मुल्क जाओ, साल में 2 दफ़ा बस आओ, काफ़ी है। दोनों बहनों की शादी करो, इनके जहेज़ बनाओ, इसके बाद चाहे अपनी बीवी को भी साथ ले जाना, चाहे हमेशा के लिए यहीं पर आ जाना, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मेरे बेटे ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं अभी इसकी माँ थी, मैंने खाना पीना छोड़ दिया और बीवी माँ में फंस गया, लेकिन इसने अपनी माँ को ही चुना। इसने कहा, ठीक है, मैं बाहर के मुल्क जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि जल्दी मान जाएगा। इसकी बीवी खामोश थी, मेरा बेटा तो मेरी बात मान गया, मुझे भी खुशी हुई। आखिर इसने मेरी बात मान ली, मानता भी क्यों ना, बेटा तो मेरा ही था ना। 2-3 हफ्ते बाद टिकट लेकर रवाना हो गया। इसके जाने के बाद इसकी बीवी उदास थी इतना, लेकिन मैंने इसे कहा कि जब शौहर परदेश में हो तो इसका रो रो कर नहीं दिखाते, कुछ भी हो जाए तो इसे कहते हैं कि सब ठीक है। इसे ये भी कहा कि ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, चलो बेटा भी मान गया और बहू भी काबू में आ गई। मेरी बहू सारा दिन घर के काम भी करती, कोई बात भी ना करती, ना ज़्यादा बोलती, ना ज़्यादा मेरा सर खाती, लेकिन रात होते ही इस घर में एक ऐसा काम शुरू हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। गर्मियों के दिन थे, मैं अपना बिस्तर बाहर सहन में लगाकर सोया जाया करती थी। सच कहूँ तो सहन में भी गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं आती थी। एक शादीशुदा जोड़े को कमरे में सोने की ज़रूरत होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, इनके कमरे बंद करके अंदर ही सोना पड़ता है। शादी के शुरू के दिनों में मेरा बेटा तो घर पर ही नहीं था। अपनी बहू से कहा, तुम भी अपनी चारपाई सहन में डाल लो, अंदर गर्मी है तो किसी का भी दम घुट जाए। तो कहने लगी, नहीं, मुझे अंदर ही सोना है। मैंने इसे समझाया कि नहीं, गर्मी है, लेकिन इसने मेरी बात ना मानी। मैंने कहा, चलो ठीक है, जब गर्मी लगे थी खुद ही बाहर आ जाएगी। आधी रात को वैसे भी लाइट चली जाती थी और वो वक़्त बहुत ही बुरा होता था, क्योंकि अच्छे वाले इंसान की नींद ख़राब हो जाती थी और गर्मी से 1 घंटा गुजरता भी नहीं था। लेकिन मेरी बहू तो इस घंटे में ही बाहर ना आती, रोज़ रात को अंदर ही सोने लगी। इसके कमरे की लाइट भी काफ़ी देर तक ऑन रहती थी। कभी कभी मुझे इसकी आवाज़ भी आती, सोचने लगी कि मेरे बेटे से ही बात कर रही होगी। अगले दिन इसे टोक भी दिया कि ज़्यादा इसे अपनी तरफ मत लगाओ, इसको काम करने दो। 2 दिन भर काम करेगा और रात भर तुमसे बातें करेगा तो फिर आराम किस टाइम करेगा। बीवी वही अच्छी होती है जो अपने शौहर के आराम और सुकून के बारे में सोचती है। बंदा 2-4 दिन बाद बात कर लेता है, ये रोज़ रोज़ की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम इसे खुद ही मना कर देना। मेरी बहू ने कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और इस रात ऐसा भी नहीं हुआ। सुबह जो देखा, देखने के बाद तो मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मेरी बहू के चेहरे पर निशान थे, लेकिन मेरा बेटा परदेश में बैठा था। फिर ये काम किसका था? मैंने अपनी बहू से पूछ ही लिया, क्योंकि खुद ही परेशान होने से मेरा ही खून जल रहा था। मैंने इससे पूछा कि जो तुम्हारी गर्दन और चेहरे पर क्या हुआ है? तो इसने कहा, कोई मच्छर काट गया होगा। लेकिन वो मुझे पागल समझती थी। वो ये नहीं जानती थी कि हर औरत जानती है ये किस चीज़ का निशान है। मेरी शादी हुई थी, मैं इसको समझती थी, और इन चीज़ों को वो दांतों के निशान थे। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे बेटे के जाते ही मेरी बहू ने किसी के साथ चक्कर चला लिया था? जबकि अभी तो सिर्फ मेरे बेटे को गए हुए सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे। ये किस किस्म की लड़की थी? 3 हफ्ते भी अपने शौहर के बिना नहीं रह सकती। अगर ऐसा कुछ था तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था?
क्या मुझे अपने बेटे को बताना चाहिए था? इसकी बीवी बदकिरदार लड़की है, लेकिन ये मैं कैसे कह सकती थी? मुझे इसके लिए सबूत की ज़रूरत थी। इसीलिए शायद वो गर्मी में भी अपने कमरे में सो जाया करती थी। मैंने अपनी बहू से कहा, कल से तुम भी बाहर सोया करोगी। इसने कहा कि बाहर नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही होंगी, डरने की ज़रूरत नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी चारपाई अपने चारपाई के साथ डलवा ही ली। इसको कहा कि सो जाओ। मैंने इस पर इतना दबाव डाला कि वो भी आकर बाहर लेट गई, लेकिन जब वो आधी रात हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहू चारपाई नहीं थी। वो अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और इसके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। कमरे की लाइट भी ऑन थी। अगले दिन अपने बेटे को कॉल की और बातों बातों में इशारे करने की कोशिश की, और मैंने हैरान थी कि मैंने इशारों को वो समझ नहीं रहा था। मैंने इसे एक झूठी कहानी भी सुनाई। एक लड़की थी जिसका शौहर मुल्क से बाहर था और पीछे इसने किसी और से चक्कर चला लिया था। तो कहने लगा, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। खैर, अल्लाह सब पर रहम करे। वो मेरी किसी बात में संजीदा नहीं लग रहा था। मैंने फिर इसकी बीवी को 2 से 4 बुराइयां की तो इसने इस पर भी बुरा ना मनाया। इसका कहना था, कोई बात नहीं, जैसे अपनी बेटी को डांट लेती हैं, समझा लेती हैं, इससे भी गलती हो जाती है, वैसे ही इससे भी तो थोड़ी गलती हो गई होगी। अगर आप इसको बेटी समझती हैं तो माफ़ कर दें, और अगर फिर भी आपने कुछ कहना है तो कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा इसको डांटें, माँ की तरह समझाएं। आप इसकी माँ ही तो हैं। अब वो आपकी बात का बुरा नहीं मनाएगी। मेरे बेटे ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम्हारी याद आ रही है, यहाँ पे खाना अच्छा नहीं। वो पहले एक दफ़ा प्रदेश गया था, सिर्फ 3 माह के लिए गया था, और 3 माह में ही तंग हो गया था। एक को माँ का और रहता, लेकिन वो वापस आ गया। इस बार तो कोई बात ही नहीं थी। मुतमिन लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे दूसरी गले में ही बैठा हो। शायद इस ऐसा आदी हो गया था। लेकिन इसकी बीवी पीछे क्या कर रही है, समझ से बाहर था। सबूत के बिना कुछ बता भी नहीं सकती थी। मैं पहले ही इसके ख़िलाफ़ थी। ये तो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं, इनके यही काम होते हैं। वो रोज़ रात को यही काम करती। गर्मी में अपने कमरे में सो जाती, आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खोल देती, जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोल रही हो, वहाँ से जा सके। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। अचानक से मेरी आँख खुली। मैंने किसी को बहू के कमरे से बाहर निकलते देखा। ज़ाहिर है वो कोई शख्स था। मैंने शोर मचा दिया, लेकिन इस शख्स ने मुझे देख लिया। अंधेरे की वजह से मुझे इसकी शक्ल नज़र नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि वो कोई मर्द था, वो भी कोई जवान लड़का जो बहुत दुबला पतला था। मैंने शोर मचा दिया, लेकिन वो शख्स वहाँ से भाग गया। हमारे साथ वाले घर में हमारे पड़ोसी रहते थे, जो हमें 15-20 सालों से जानते थे। इनके जवान बेटे थे। इनको जब शोर सुनाई दिया तो मदद को आ गई। उन्होंने यही कहा कि शायद कोई चोर आया होगा, लेकिन आपके शोर मचाने की वजह से भाग गया। हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, घर में से कोई भी चीज़ गायब नहीं थी। मैं जानती थी कि वो चोर नहीं था, वो मेरी बहू का आशिक था। अब तो मैंने ये बात अपने बेटों को बताना अपना फ़र्ज़ समझा, क्योंकि ये मेरा आपको देखा था। मैंने इसे दिन फ़ोन किया और ये बात बता दी, मगर उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो चोर ही होगा। आप क्यों शक करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। इसने इस बात का इतना नॉर्मल लिया कि मैं हैरान रह गई। लेकिन मेरी बहू की जो हरकतें थी वो भी तो हैरान कर देने वाली थी। आजकल तो वो अजीब हरकतें कर रही थी। कभी रात का खाना ना खाती तो कभी दिन का खाना। मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगी कि दिल नहीं करता। फिर एक दिन तो हद ही होगी, अचानक से इसका दिल बतलाने लगा और वहाँ से उठकर भाग गई। मेरी बेटी इसके पीछे गई तो पता चला कि भाभी तो उल्टियाँ कर रही है। अब शादी के बाद औरत उल्टी क्यों करती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बात का मुझे यकीन था। मेरे बेटे के जाने से पहले मेरी बहू उम्मीद से नहीं थी, और ना ही उम्मीद का कोई इम्कान था। औरतों की बातें सही, लेकिन मुझे यकीन था कि इसको गए हुए 5 महीने हो गए थे। अगर इस वक्त से ही मेरी बहू को उम्मीद मिली होती तो अभी तक तो इसे 5 महीने का हमल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, और ये हम दोनों जानते थे। मेरी बहू ने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने भी इस बात पर ध्यान ना दिया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। लेकिन जब 2-4 महीने गुजर गए, मेरा बेटा बाहर से वापस पैसे तो भेजता था, लेकिन बहुत ही कम कहता था, काम अच्छा नहीं चल रहा। 2-4 माह गुजर गए तो देखा मेरी बहू का पेट बढ़ने लगा। मेरी बहू तो दुबली पतली सी थी, लेकिन पेट की जगह से इसका पेट बढ़ने लगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो घर में शोर डाल दिया। अब मैं अपनी बहू को बदकिरदार, बदचलन,
जाने क्या क्या कहती, बात पर डांटती रहती। बेटे के जाने के बाद हाथ से निकल गई, लेकिन वो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाती, पलट कर मुझे जवाब भी नहीं देती थी। मैंने इस खामोशी को इसके ढीठपन में समझती थी। मेरी बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, वो शख्स को घर में बुलाती थी और आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब तो हद ही होगी, मैंने सोच लिया, इसको मुझे रंगे हाथों पकड़ना होगा और फिर ये बात अपने बेटे को बता दूंगी। एक रात मैं उठी और अपनी बहू के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि अंदर से आवाज़ें आ रही थी, हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी, किसी को जान जानू कह रही थी। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने सर पे हाथ रख लिया, फौरी ही वापस पलट गई। मैंने जो देखा इस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी बहू के कमरे में एक आदमी मौजूद था। मेरी बहू इससे हंस हंस कर बातें कर रही थी, इसका हाथ थामे इसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। वो मेरी बहू के लिए तोहफे भी लाया था, जिसमें बच्चे के कपड़े मौजूद थे, जिन कपड़ों को वो देखकर खुश हो रहे थे। वो हंस रहे थे जैसे ये कह रही हों कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। लेकिन वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही बेटा था, और वो पाकिस्तान में कैसे हो सकता था, जबकि सुबह ही मेरे इससे बात हुई थी। इसने कहा था कि मैं दुबई में हूँ और यहाँ पर बहुत गर्मी है। मुझे देखकर वो दोनों ही घबरा गए और मेरा बेटा मेरी तरफ लपका कहने लगा, अम्मी परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मेरे कदमों में बैठ गया। अपने बेटे को वहाँ देखकर मैं हैरान थी। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा ही बेटा है और मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही, तो मैं बहुत पुरसकून हुई, लेकिन मुझे साथ गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस वक्त आए हो, तुम क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। तो मेरे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी हमारी शादी हुई थी और हमने तो अभी एक साथ एक हफ्ता भी नहीं गुजारा था। आपने मेरे सर पर बाहर जाने की तलवार लटका दी। आप खुद ही सोचे कि एक बंदे की शादी को हफ्ता भी ना हुआ हो और इसे कहे कि अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर 7 समुंदर पार चले जाओ, तो इस पर क्या गुजरेगी। आपको मनाने की बहुत कोशिश की, इनकार भी किया, समझाया भी, लेकिन आप तो भूख हड़ताल कर बैठी। आप इसी का मतलब तो यही था कि आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैं भी अपनी बीवी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था और ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। मैं आप करने लगा, मैं दुबई चला गया हूँ, रवाना हो गया हूँ, जबकि मैं लाहौर जाकर वापस आ गया था और अभी भी इसी शहर में काम करता हूँ। अपने एक दोस्त के साथ काम करके दिन भर मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन जब रात होती है तब मुँह छुपाकर अपने घर में आ जाता हूँ और पिछली गली में खुलने वाली खिड़की से अपने ही बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता हूँ। वापस जाने के लिए कभी कभी मैं दरवाजे को इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप सो रही होती हैं। लेकिन इस दिन आपकी आँख खुल गई। जिसको चोर समझा वो कोई और नहीं, आपका ही बेटा था। आपने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको धोखा दूं, और मैं आपको कम पैसे भेज रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही रहते हुए कमा रहा था। मैंने अपने बेटों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अगर इतनी ही आग लगी हुई थी दिल में, अपनी बीवी से दूर नहीं जा सकता था, तो फिर डर किस बात का था। मुँह से बोल देता कि ऐसा है, मैंने क्या तलवार लेकर तेरे पीछे पड़ जाना था। मैंने गुस्से से कहा, मेरा बेटा प्यार से बोला है, आपको नाराज़ करने का डर था। मैं अपनी बीवी और आपसे आपको चुनना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी बीवी को एक तरफ रख देता। आपने मेरी बीवी को कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, इसे गालियों से पुकारने लगी, लेकिन इसने आपको किसी बात का जवाब तक नहीं दिया, जबकि इसके पास बहुत अच्छा जवाब था। ये बच्चा मेरा है, आप दादी बनने वाली हैं। आपको पता है हमारे घर में एक प्यारा सा बेटा होने वाला है। आज ये बात हमें पता चली है। अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं अपनी बीवी होने वाले बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। आप लोग मेरी फैमिली हैं, लेकिन ये लोग भी तो मेरी फैमिली हैं। मेरी ज़िम्मेदारी है अपने घर को छोड़कर मेरे लिए तो आई है। मेरे बेटे ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मैंने इसे माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि शायद मैं खुद गर्ज हो गई थी, क्योंकि गलती मेरी थी। मेरे बेटे ने भी वादा किया कि वो हमेशा हम सब का ख्याल रखेगा। फिर इसने यहाँ पर रहकर एक नया काम शुरू कर दिया, जिससे इसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। अल्लाह ने इसे प्यार से बेटे से नवाजा, बहुत प्यारा है। घर में रौनक लग गई। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए जहेज़ भी जमा कर रही हूँ और ये मेरे बेटे की बदौलत ही हो रहा है। सब साथ रहते हैं, कोई ना कोई छोटी बड़ी चीज़ लेकर हम रख रहे हैं। इसका भी तलाशी
कर रही हूँ, सोचती हूँ दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करा दूँ। अपनी बहू से बदज़बानी कलामी एक ही दफ़ा माफ़ी मांगी तो इसने मुझे फ़ौरी माफ़ कर दिया। अच्छी है मैं अपनी फैमिली के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।